Church, our God never meant for us to live a normal, ordinary life. और कलीसिया के आप जानते हैं हमारे परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं कि हम एक साधारण You जीवन agree जिए। with me or no? क्या आप मुझसे सहमत हैं? Ah, yes, amen. Hallelujah. Our God has not kept us on this earth to lead an average life. और हमारे परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक साधारण सा जीवन जीने के लिए नहीं रखा, But He has designed us for His excellence. परंतु उसने हमें उत्तम के लिए निर्मित उसकी He की has है। made you that you can stand out in the marketplace and declare the things which the Lord speaks to you day after day. और उसने आपको रचा है ताकि आप खड़े रहे और जो परमेश्वर आपके साथ कर रहा है उसकी घोषणाओं को आप He करें। has created you and me for success. उसने आपको और मुझे विजय के लिए, सफलता के He लिए has रचा not है। created you and me for failure, church. उसने आप और मुझे हार के लिए नहीं रचा He है। has not created you and me to go through a situation of sickness each and every day of our और life. उसने हमें इसीलिए नहीं रचा कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम बीमारियों का सामना करें। Each one of us is uniquely created by Him. और हम में से हर एक उससे अद्भुत रीति से We रचा are very है unique. और हम सब एक ऐसे विशेष हैं। In this world, we are very unique people. और इस दुनिया में हम एक ऐसे असाधारण मनुष्य He हैं has created us to do something extraordinary. और ऐसा कुछ असाधारण करने के लिए उसने हमें रचा है। Instead of being one in a million, और करोड़ों में लाखों में एक होने के बजाय, I can tell you are actually 1 in 7 billion. और मैं आपसे कहूंगा कि आप 7 करोड़ में आप एक हैं। There is no one else like you and me, church. आपके जैसा, मेरे जैसा कोई नहीं है। Go on this earth, go on the street, find out whether you find anyone like you. और इस पृथ्वी भर में जाए, आप गलियों में जाइए, यदि आपको हमारे जैसा कोई मिल गया तो बताए। You are unique आप ऐसे अलग हैं because you serve a risen Savior. क्योंकि आप एक जीवित उद्धारकर्ता की I am going to share about a person in the scriptures this morning. और वचन में एक ऐसे मनुष्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। The Bible consists of 66 books. Yes or no? बाइबल में 66 किताबें हैं And how many verses, church? और In 66 books, how many verses? 66 किताबों में कितनी आयतें हैं? Can anyone tell? क्या कोई बता सकता है? 31,102 verses. 31,102 आयतें हैं। 31,102 verses. 31,102 आयतें हैं। But in that 31,102 verses, और उन 31,102 आयतों में सिर्फ only 2 verses for this man. और केवल 2 ही आयतें इस मनुष्य के बारे में हैं। Nowhere else in the Bible it is written about him. और दूसरी कहीं भी जगह इस मनुष्य के बारे में नहीं लिखा। Only 2 small verses about this man. और केवल 2 छोटी आयतें इस मनुष्य के बारे में हैं। And this man's name is Jabez. और उस इंसान का नाम है जाबेज। In 1 Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. और पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। Now Jabez was more honorable than his brothers. और जाबेज जो है वो अपने भाइयों से ज्यादा सम्मानित था। The first 9 chapters of 1 Chronicle consists of genealogies. और जो ये पहले इतिहास के पहले 9 अध्याय है उस पे हम वंशावली को देखते हैं। More than 100 names. और 100 से ज्यादा नाम उसमें है। But right in the middle of all this name, God singles out one person. और इन सभी नामों के बीच में परमेश्वर इस एक नाम को रखता He है। is a very special person recognized by God. और ये बहुत ही ऐसा परमेश्वर से जाना हुआ विशेष व्यक्ति है। And this name is Jabez. और उसका नाम है जाबेज। जाबेज। Why his name is Jabez? उसका नाम याबेज ऐसा क्यों है? Read the story. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez. Because she bore him a Pain. pain. Open your scriptures to 1 Chronicle 4 verse 9. और पहला इतिहास 4वां अध्याय 9वां वचन हम देखेंगे। 1 Chronicles chapter 4 and verse 9. पहला इतिहास 4वां अध्याय 9वां वचन हम देखेंगे। Amen. So there is a prayer of Jabez. और यहाँ पर एक याबेज की ऐसी If you प्रार्थना go to है। verse 10, there is a prayer. और अगर 10वीं आयत को देखेंगे तो वहाँ पर एक प्रार्थना है। There are 5 secrets to this man's life और इस मनुष्य के जीवन के 5 ऐसे रहस्य found हैं। in these verses. इन आयतों में हम देखते 5 हैं secrets. 5 रहस्य। You know, I was preparing this verse and suddenly when I was reading my daily devotion, when I was doing, my eyes fell on this chapter. और जब रोज के मनन में जब मैं वचनों को पढ़ रहा था तो इस आयत के ऊपर, इस अध्याय के ऊपर मेरा नजर गया।
And I said, Lord, only 2 verses for this man. और मैंने कहा परमेश्वर केवल 2 आयतें इस मनुष्य के बारे में, But very powerful verse. परंतु बहुत ही सामर्थ्यशाली Very वचन powerful prayer. और बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना। Verse 10 says, 10वीं आयत में कहा है, there are 5 secrets 5 रहस्य to हैं this man's life. इस मनुष्य के जीवन के, And these 5 secrets, church, you and I can apply in our life. और ये 5 रहस्य आप और मैं हमारे जीवन में इस्तेमाल कर The सकते हैं। first secret is, पहला रहस्य है, Jabez had a life of faith. और याबेस के पास जो है वो विश्वास का जीवन था। Jabez had a life of faith. याबेस का जीवन विश्वास से How भरा can हुआ we था। say that? हम कैसे कह सकते हैं? You know, in verse 10, 10वीं आयत में he says, वो कहता है, Behold, God, if you will bless me indeed. और देखो परमेश्वर यदि तुम सच में मुझे आशीषित करो, God, behold, you will bless me indeed. और परमेश्वर मुझे सच में आशीषित करे। Jabez called on the name of the Lord his God. और याबेस ने अपने परमेश्वर के नाम को पुकारा, He called out to the name, the God of Israel. और इज़राइल के परमेश्वर के नाम को उसने पुकारा। The verse 9 says his mother kept his name what? Jabez. What does the meaning of Jabez means? Pain. और 9वें आयत में हम देखते हैं कि उसकी माता ने उसका नाम रखा याबेस। याबेस का अर्थ होता है दुख, दर्द। Just imagine, church. आप कल्पना कीजिए कलीसिया, आज के जमाने में वो नाम होता. और यदि आज के ज़माने में उसका ऐसा नाम है, You pain, come here. हम You बुलाएं. pain, go there. हम ऐसे बुलाते हैं, दर्द आप आ जाओ, दर्द आप जाओ। You know, very, very important, church, how you name your child. और कलीसिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों का नाम कैसे रखते हैं। How you keep the name of your child is very important. अपने बच्चों का नाम आप कैसे रखते हैं, ये बहुत ही What जरूरी name you है। give to your child is very important. जो नाम आप अपने बच्चों को देते हैं वो बहुत ही You know, महत्वपूर्ण है, your child's name will stand out. और आपके बच्चों का नाम ऐसे विशेष रूप से खड़ा रहेगा। You cannot keep a child's name a मूर्ख. और आप अपने बच्चों को ऐसे मूर्ख नहीं बना Do not सकते, call him. उन्हें ऐसे आप ना बुलाए, Do not call him. Call him by his name. और उसके नाम से आप उन्हें बुलाए। Book of James chapter 1 and verse 5 to 8 says, और याकूब की किताब पहले अध्याय 5 से 8 वचन if में हम देखते any हैं, one of you lack wisdom, let him ask of God. यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, Because his brothers were more honorable before, क्योंकि उसके भाई उससे ज्यादा सम्मानित थे। you know, Jabez prayed to the Lord, याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की, and God made him more honorable than his brothers. और परमेश्वर ने उसके भाइयों से ज्यादा सम्मानित किया। Something must have spoken to him and said, he must have asked God, I lack wisdom, give me wisdom. और कुछ तो उससे बात की होगी, उसने मांगा कि परमेश्वर मुझे विवेक की That's जरूरत why है। book of James chapter 1 and verse 5 to 8 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. इसीलिए याकूब की पहली किताब की 5वें आयत में हम देखते हैं कि यदि किसी को विवेक की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे देगा, Who gives generously. जो उदारता से देने वाला My है। God is not a कंजूस God. और मेरा परमेश्वर ऐसा He कंजूस doesn't नहीं hold है। his hands and his fist like that and says, no, I will bless you this much. और वो कभी अपनी मुट्ठी को बंद रखकर नहीं कहता कि मैं तुम्हें इतनी ही आशीष दूंगा। No, he is a God who gives more than what you ask. और जो आप मांगते हैं उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर वो है। So Jabez prayed in faith. याबेस ने विश्वास में प्रार्थना And की, because of his simple prayer, और उसकी साधारण प्रार्थना के वजह से till today the church speaks about him. आज भी कलीसिया उसके बारे में बात करती है। Thousands of years later also we are hearing about him. हजारों साल भी आज भी हम उसके बारे में सुन रहे He हैं, was a simple man of faith. और वो विश्वास का ऐसा साधारण मनुष्य था, He was a very simple man of faith. और वो विश्वास का बहुत ही God साधारण honored मनुष्य his था। faith. परमेश्वर ने उसके विश्वास का सम्मान किया। He was not an extraordinary person. वो कोई असाधारण मनुष्य नहीं था, He had not done anything which was very, very great. उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जो बहुत ही महान है। If he would have done something like that, the Bible would have been speaking about his name in some of the chapters. यदि उसने ऐसा कुछ किया तो बाइबल में और भी कई आयतों में उसके बारे में बताया जाता, But he was a simple man. परंतु वो साधारण मनुष्य था। He only prayed in faith. उसने केवल विश्वास में प्रार्थना की, And God honored him. और परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। God honored him. परमेश्वर ने उसका सम्मान Church, किया। your simple prayer in faith
God will honor that. कलीसिया विश्वास से आपकी साधारण प्रार्थना जो है Today परमेश्वर का sitting सम्मान here, you may करेगी। not be an extraordinary person. और आज आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे कोई असाधारण मनुष्य ना होंगे। You may think this one is better than me. आप सोच रहे होंगे ये मेरे से बेहतर है। You know, you may be going to your office and saying, this person is better than me, she or he works better than me. और आप अपने काम की जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि वो मुझसे अच्छा काम But करते as I हैं। said, you are a unique person. परंतु जैसे मैंने कहा कि आप असाधारण मनुष्य हैं। Ask in simple prayer to God every day. और साधारण रीति से आप परमेश्वर से मांगे Ask the Lord, God, I need you. और कहे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। Tell the Lord, Lord, you are with me. और परमेश्वर से कहे कि आप मेरे साथ हैं। He remembered because he prayed to God. परमेश्वर को याद था क्योंकि उसने उससे प्रार्थना की He थी। is remembered by God because he prayed continuously to his God. और परमेश्वर ने उसे याद रखा क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर He से प्रार्थना prayed कर in रहा था। faith and God answered him. उसने विश्वास से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर A दिया। simple prayer made him stand out. और एक साधारण प्रार्थना जो है उसे अलग लेकर In the entire 66 books, only 2 verses, in 31,102 verses, only 2 verses about him, God made him stand out. और ये 66 किताब 31,102 आयतों में केवल 2 आयतें उसके बारे में है। Our prayer could help us to stand out too. और हमारी प्रार्थना हमें ऐसे अलग खड़ा कर To सकती है live above the normal life. एक असाधारण जीवन जीने के You know, we लिए। are satisfied people. और हम बहुत ही संतुष्ट लोग We हैं have this one mentality here. और हमारी एक ही सोच होती And that है mentality is चलता है attitude. और वो सोच होती है कि सब चलता है। That चलता है attitude, you have to come against it in the name of Jesus. और यीशु के नाम से वो चलता हुआ स्वभाव को आपको दूर करना You are है। not a चलता है attitude guy. आपका ऐसा स्वभाव नहीं होना You are not a चाहिए चलता attitude family. और आप ऐसे चलता हुआ परिवार नहीं है। God has chosen you for something great in your life. और परमेश्वर ने महान चीजों के लिए आपका चुनाव Your किया है। family has been chosen for something great. आपका परिवार के लिए महान योजना है। Don't believe the lie of the evil one that you are a चलता है attitude और family. दुष्ट के झूठ पर आप भरोसा ना करें कि सब चीजें आपके लिए चलती Devil is हैं। a liar, church. और दुष्ट जो है वो झूठा But है। remember, whenever this thought comes into your mind, go to 1 Chronicle chapter 4 verse 9 and 10 and read it, that your faith will be increased in the Lord. और जब कभी आपको ऐसा विचार आए तो ये पहला इतिहास के 4थे अध्याय में आप जाए और देखिए कि आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़े। God wants you and me to be successful, church. और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सफल रहे। He does not want you to lead a life of failure. और वो नहीं चाहता कि आप एक निराशा भरा He जीवन does not जिए। want you to lead a life of ordinary person. और वो नहीं चाहता कि आप ऐसे साधारण होकर He जिए। wants you to lead a life of success and victory. और वो आपको विजय और सफलता का जीवन देना Because चाहता the है। Bible says, wherever the sole of my feet shall tread upon, और बाइबल बताती है जहाँ कहीं मेरी आत्मा जाए that place I have given it unto you. वो स्थान मैंने तुम्हें दे दिया है। Do not feel shy. Declare as you put your foot in that place. Declare the word of God in that तो आप place. शर्म ना महसूस करें, जहाँ कहीं आप पाँव रखे उस भूमि को आप अपने लिए घोषणा God has करें। given you the authority to bind everything on this earth. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर हर एक चीज को बांधने का। You feel that the situations are not right and you are entering that place. और आप सोचते हैं कि परिस्थिति ठीक नहीं है और आप उस स्थान में जा रहे You are हैं। not walking alone, but the Spirit of the Most High God is also going ahead of you. मैं आप अकेले नहीं चल रहे परंतु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आपके आगे आगे चलती है। Declare the word and speak to that situation where you are standing. वचन की घोषणा करें, जिस परिस्थिति में आप खड़े हैं वहां पर परमेश्वर की वचन की घोषणा Jeremiah करें। 33 and verse 3 says, Call unto me and I will answer you. और यिर्मयाह 33 का 3रा वचन कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। He does not say speak, only close your lips and just call me. और वो कहता नहीं कि अपने मुंह को बंद करके तुम पुकारो। Don't feel shy to call to your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता को बुलाने के लिए आप शर्म ना माने। If my children feel shy to call me, यदि मेरे बच्चे मुझे बुलाने के लिए शर्माए, my heart will be broken. मेरा दिल टूट जाएगा। In the same way, church, as it is in the earth, it is more than that in the heaven. और उसी रीति से जैसा पृथ्वी पर है वैसा स्वर्ग में है। Your Father in heaven waits for you to call out unto him. आपका स्वर्गीय पिता रुका है कि आप उसे पुकारे। Jeremiah 33 and verse 3 says, और यिर्मयाह 33 का 3रा वचन कहता Call है, unto me and I will answer you and I will show you great and
unsearchable things that you do not तुम know. मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा और ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसे तुमने नहीं सोचा। The secret and the mysteries God will reveal unto you when you call unto Him in sincere faith. और जब आप दृढ़ विश्वास से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो रहस्य को आपके ऊपर प्रकाशमान करेंगे। Even God says, if you have a faith like a mustard seed, और परमेश्वर कहता है यदि राई के दाने के समान आपका विश्वास that is है, more than enough to receive what God wants to give you. जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसके लिए वो काफी है। Hallelujah. हालेलुया। But call unto Him. परंतु आप उसे पुकारे। Our job is to call unto Him. हमारा काम है उसे पुकारना। So let us call on Him in faith. हम विश्वास से परमेश्वर को पुकारे। The second word, this thing, second secret. और दूसरा रहस्य ये है, Jabez prayed for God to bless him. याबेस ने परमेश्वर से उसके लिए आशीष को मांगा। Church, it is God's nature to bless His people. और परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो अपने लोगों को आशीषित करता It है। is His nature, church. ये परमेश्वर का स्वभाव है। You know, if your son is hungry यदि आपका बेटा भूखा है and he asks for bread, और वो रोटी मांगे, will you give him a stone? क्या आप उसे पत्थर देते हैं? You will give him the best of the food what is there in the house. तो जो आपके घर में है वो आप उसका उत्तम भोजन उसे देते My हैं। heavenly Father is more than the earthly father. और मेरा स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी के पिता से कहीं अधिक बढ़कर It है। is His nature to give me the best. और ये उसका स्वभाव है आपको उत्तम देना। Do not get satisfied with second best. और जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट ना रहे। Always ask God, you are my heavenly Father. I need your blessing. I need your blessing, Lord. और हमेशा कहे कि पिता आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं और मुझे आपकी आशीष चाहिए। His nature is to bless His people. और उसका स्वभाव है उसके लोगों को आशीषित If करना। you see in Genesis chapter 12 and verse 2 and 3, और उत्पत्ति 12, 2 और 3 आयत हम देखेंगे। God is speaking to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, He's saying, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. और वो कहता है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे। मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। God spoke to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से बात God की told him that I will bless you. और उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीष Today, दूंगा। church, you are sitting here और कलीसिया आप आज यहाँ बैठे हैं with an expectation. एक उम्मीद लगाकर, God is speaking to some people here. और परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा He is है। going to bless you abundantly. वो भरपूर से आपको आशीषित कर Your देगा। role and my role is to follow Him without any compromise in our life. और आपका और मेरा काम है कि बिना किसी मोल भाव के हम उसके पीछे चले। God always wants His children to be blessed. और परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को आशीषित करना चाहता है। One more thing, एक और चीज, God has no shortage of blessing. और परमेश्वर के पास आशीषों की कमी नहीं। No shortage of blessing. परमेश्वर के पास आशीषों की कमी He is the नहीं God है। of abundance. वो भरपूरी का परमेश्वर है। You know, you and I can tell your children, our own children, और आप और मैं हमारे बच्चों को कह सकते हैं this much is enough, eat this much only. और इतना काफी है, आप इतना ही खाए You know, don't ask for more. और ज्यादा आप ना मांगे। है ना? But my God never says that way. परंतु मेरा पिता कभी ऐसे He नहीं is the God कहता। of abundance. वो भरपूरी का He परमेश्वर wants to है। bless you abundantly. वो भरपूरी से आपको He आशीष wants to देना give चाहता you है। abundantly. वो भरपूरी से आपको देना चाहता We है। are not receiving because we lack in asking Him. और हम उसके पूछने से कमी पड़ते हैं, इसीलिए हम नहीं घटते। You know, we put so many conditions to our Father in heaven. और हम हमारे स्वर्गीय पिता के लिए बहुत से ऐसे अर्थ लगाते Just हैं। imagine Joshua or Shama puts a condition in front of me saying that I want this only, I will eat this only. You know, I will say, if you want to eat this, eat and go. और आप सोचिए यदि पासवान जोशुआ जी और शमा जी कहे कि हमें यही चाहिए, मैं यही खाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कि यही है, आपको यही खाना है और But आप my खाए और Father जाए। in heaven, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता He is in abundance of blessing. वो आशीषों को भरपूरी रीति से Even देता है। if I ask more, He will give me more. यदि मैं और मांगू तो वो मुझे और ज्यादा देगा। If I ask Him more and more, more and more, more and more, more and more, और यदि- He will keep on blessing me and blessing me. और And यदि blessing मैं me. उससे और ज्यादा मांगता रहूंगा
मांगूंगा तो वो मुझे देता ही रहेगा He has no shortage of his blessings. और उसके पास आशीषों की कमी नहीं। The third point, तीसरा रहस्य, Jabez prayed to have more. और जाबेज ने प्रार्थना की और ज्यादा की। He said, उसने कहा, enlarge my border, मेरे सीमाओं को आप बढ़ाए, enlarge my border. मेरे सीमाओं को आप बढ़ाए। Somewhere it is written, KJV says, enlarge my territory. और कहीं लिखा है कि मेरे राज्य को आप बढ़ाए। You know, God, he never asked, God, I'm on this earth, give me 100 acre of land. और उसने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी में मुझे 100 एकड़ जमीन दो। You want me to be a blessed man? यदि आपको एक आशीषित मनुष्य होना है, नहीं, if you want to be a blessed man, और यदि आपको आशीषित होना है, you know, he didn't ask, God, give me 100 acres, उसने नहीं कहा कि मुझे 100 एकड़ so I'll जमीन build a beautiful farmhouse, ताकि मैं एक सुंदर फार्म हाउस I बनाऊं, will do cultivation, मैं वहां पर कुछ खेत and उगाऊं then I will become rich. और फिर मैं अमीर बन जाऊं। No, he didn't ask for all that thing. और उसने ये सब चीजें नहीं मांगी। He only said, Lord, enlarge my borders, उसने केवल कहा कि प्रभु मेरे सीमाओं को आप बढ़ाओ enlarge my territory, और मेरे राज्य को आप बढ़ाओ, make it bigger. आप उसे बड़ा करो। Let this be your prayer every day. और रोज आपका ये प्रार्थना When you हो, are sitting in your devotion time, जब आप अपनी प्रार्थना में बैठते tell the हैं, Father in heaven, Lord, enlarge my territory. अपने स्वर्गीय पिता से कहे कि परमेश्वर मेरी सीमाओं को आप बढ़ाए Enlarge my territory. और मेरी सीमाओं को आप If बढ़ाए। you are flowing in one gift, और यदि आप एक भेंट में हैं ask the Lord, Lord, enlarge my territory. और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरी सीमाओं को आप If you बढ़ाए। are flowing in the gift of discernment, और यदि आपके पास भेंट करने वाला गिफ्ट है and if you don't have a gift of healing, और यदि आपके पास चंगाई की भेंट नहीं say, है, Lord, enlarge my territory. कहे परमेश्वर मेरी सीमाओं को आप बढ़ाए Enlarge my borders, O God. और मेरी सीमाओं को बढ़ाए, Enlarge it. आप उससे बढ़ाए। Jabez did not ask याबेस ने नहीं for मांगा 100 acre. 100 एकड़ भूमि He just की, asked, Lord, enlarge my borders. उसने कहा कि परमेश्वर मेरी सीमाओं को आप You know बढ़ाए। something? क्या आप जानते हैं, When you pray like him, जब आप उसकी जैसे प्रार्थना करते you हैं, know, you are opening a door of blessings in your life. आप अपने जीवन में आशीष के दरवाजों को खोलते हैं You are taking the limits of God. और आप परमेश्वर के हद को तोड़ देते It's हैं like saying to the Lord, और आप कहते हैं, Lord, I am tired of limiting you, Lord. और परमेश्वर मैं अब थक गया हूँ आपको सीमित करने से, Lord, here I surrender to you. और परमेश्वर मैं आपको समर्पित करता हूँ God, I am not going to ask how much you have to give me. और मैं नहीं मांगूंगा कि कितना आप मुझे देना My चाहते हैं, prayer at your feet is only, God, that you will enlarge my territory. और मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी हद को, मेरी सीमाओं को बढ़ाएं You can give me what you think best is for me. और जो आप सोचते हैं जो मेरे लिए उत्तम है आप वो मुझे दे। But many Christians are failing in asking God. परंतु बहुत से मसीह परमेश्वर से They are मांगने में asking पीछे रहते हैं। something which is not right for them. और वो ऐसी चीजों को मांगते हैं जो उनके लिए सही नहीं, They are asking for monetary benefits. और वो जो है इस धरती के चीजों को मांगते हैं। Bible says, बाइबल बताती है, you know, Bible very clearly says, और बाइबल स्पष्ट रूप से seek बताती ye है, first the kingdom of God and his righteousness, और पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो and this much will be given unto you. और फिर इतना ही आपको दे दिया जाएगा, This much will be given unto you. Say amen. और फिर इतना ही आपको दे दिया जाएगा। No. नहीं, And all these things shall be added unto you. और ये सारी चीजें जो है वो आपको दे दी जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. All these things. ये सारी चीजें, You know, do not ask in limitations. और आप हद में आप ना मांगे, Ask God. परमेश्वर से मांगे Say, God, here I am, enlarge my territory. और कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरे सीमाओं को आप बढ़ाए। You are working in an office. आप एक ऑफिस में काम करते You हैं are waiting for a promotion. और आप तरक्की के लिए रुके हैं, I tell you, church, do not go and do chaplaincy. और आप जाकर चापलूसी ना करें Do not go after the managers and all. और मैनेजर के पीछे पीछे आप You ना know, this जाएं। world standard is, और ये जो दुनिया का संसार का रीति है, I scratch your back, you scratch my back. तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ, You know, that is the worldly system. और ये संसार का नियम है। But my God says, परंतु मेरा परमेश्वर कहता as है, Jabez prayed, जैसे याबेस ने प्रार्थना Lord, की, you enlarge my territory. परमेश्वर आप मेरी सीमाओं को बढ़ाए। It is not in the hand of that manager to promote you. और ये किसी मैनेजर के हाथ में नहीं आपको तरक्की देना, It is not in the hand of the
manager to increase your salary. और ये मैनेजर के हाथ में नहीं है आपके पगार को बढ़ाना। God is a God who provides. और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रबंध को He करता says, है। I am your provider. वो कहता है मैं तुम्हारा प्रबंध करने I am वाला your हूँ। Jehovah Jireh. मैं तुम्हारा यहोवा ईरे हूँ। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. मैं अल्फा में ओमेगा में शुरुआत में अंत हूँ। Do not limit God, church. आप परमेश्वर को सीमाओं में ना Do not limit बांधे। Him. आप परमेश्वर को सीमाओं में ना बांधे। Tell the Lord, Lord, here I am. Enlarge my territory, enlarge my borders. और कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरी सीमाओं को, मेरे राष्ट्र को आप बढ़ाए। Go to Matthew chapter 7 and verse 9. मत्ती उसका 7वां अध्याय 9वां वचन। Or what man is there among you who, if his son asks for bread, I have already spoken about it. और मैंने पहले ही इस बारे में कहा है। The fourth point. चौथा रहस्य। The fourth point is, चौथा रहस्य है Jabez prayed to have God's presence in his life. और याबेज ने परमेश्वर की उपस्थिति को उसके जीवन में मांगा। Verse 10. Verse 10. That your hand might be with me. कि आपका हाथ मेरे साथ रहे। You know, go to entire verse 10 open and keep in your Bibles. और पहले इतिहास चौथे I am अध्याय going के line by line. पहला इतिहास चौथा अध्याय 10वां वचन हम देखते हैं। The first says, और bless me, O Lord, और पहला लाइन कहता है कि परमेश्वर मुझे आशीषित and करे enlarge my territory. और मेरी सीमाओं को बढ़ाए। The third says, तीसरी लाइन कहती that your है hand would be with me. कि आपका हाथ मेरे संग बना रहे। Amen. The fourth point is, और चौथा रहस्य है the fourth point is that your hand might be with me. कि आपका हाथ मेरे साथ बना You know, रहे। when the hand of God is on you, और जब परमेश्वर का हाथ आप पर है, it is very apparent that people will notice you. ये बहुत ही सहज है कि लोग आपको देखेंगे। You walk, आप चलेंगे, you talk, आप बोलेंगे you carry the fragrance of the living God. और आप जीवित परमेश्वर के लिए चलेंगे। You carry that fragrance. आप उस सुगंध को लिए चलेंगे No need of any other fragrance. और कोई सुगंध नहीं। You know, God's fragrance is more than enough to pull people towards you. और परमेश्वर का सुगंध काफी है लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। God in all His glory, majesty and splendor and awesomeness wants to put His hand on you and me. और परमेश्वर अपने पूरे महिमा में अपना हाथ आपके और मेरे ऊपर रखना He चाहता है। wants to carry us through each and every situation. और वो चाहता है कि हर परिस्थिति में वो हमें उठाए चले। Our Bible is filled with promises, church. और हमारी बाइबल जो है वादाओं से भरी हुई He है। says, even if you go through the valley, I am there with you. और वो कहती है यदि तू घोर अंधकार में चले तो मैं तेरे साथ हूँ। Your rod and your staff is there to comfort me. तेरे सोटे और लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है। Our Bible is filled with so many promises. और बाइबल में बहुत सी प्रतिज्ञाएं But we हैं। as Christians we are not able to recognize that promises in our life. परंतु मसीह होने के नाते हम उसे अपने जीवन के लिए नहीं पहचान That पाते is हैं। the biggest failure of our Christian life. और ये मसीह जीवन की सबसे बड़ी हार है। We are crying people. और हम रोने वाले लोग We हैं। keep on crying. हम रोते हैं रोते रहते As the हैं। people of Israel cried, we are keeping on crying. जैसे इजराइल के लोग रोए थे वैसे हम भी रोते हैं। Today the Lord is telling you, और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है stop crying and start proclaiming my word. और रोना बंद करें, मेरे वचन की घोषणा आप Stop करें। crying and proclaim my word. रोना बंद करें, मेरे वचनों की घोषणा आप Don't करें। run here and there, और यहाँ वहाँ ना दौड़े, but run to the Father in heaven. परंतु स्वर्ग के पिता की ओर आप दौड़े। Say, God, as your word says in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. और कहे कि पिता जैसे पहला इतिहास चौथा अध्याय 9-10वें वचन में आपका कहता है, Bless me, O Lord, indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me. परमेश्वर आप मुझे आशीषित करें और मेरे सीमाओं को बढ़ाए कि आपका हाथ मेरे साथ बना रहे। Psalms 18 and verse 35 says, और भजन संहिता 18 कहता है, You have also given me the shield of your salvation. हे परमेश्वर तूने मुझे ढाल दी है Your right hand has held me up. और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे पकड़े रखा The है। Bible never says your right hand has put me down, और बाइबल नहीं कहती कि तेरा दाहिना हाथ मुझे छोड़ but your दिया right है, hand has lifted me up. परंतु तेरे दाहिने हाथ ने मुझे पकड़े The रखा God है। of heaven and the earth says this morning, church, to you, और स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपसे कहता His है, right hand is holding you up. उसका दाहिना हाथ आपको उठाए हुए है। You are standing, sitting in the midst of 1,000 people, no problem. You will be a unique person there आप also. हजारों लोगों की भीड़ में खड़े हैं, बैठे हैं, कोई मायने नहीं रखता, परंतु आप ऐसे अलग
अलग होकर दिखेंगे। His gentleness, not your gentleness. The Lord's gentleness has made me great. और परमेश्वर की सौम्यता ने मुझे महान बनाया है। Go to Psalm 63 and verse 8. भजन संहिता 63 उसका 8वां आयत। My soul follows close behind you. मेरा मन तुझ में समता है Your right hand upholds me. और तेरा दाहिना हाथ मुझे पकड़े रखता है। Your right hand upholds me. तेरा दाहिना हाथ मुझे In पकड़े रखता any है। situation of your life, do not forget that the Lord's right hand is upon you. He is holding you up. आपके जीवन की किसी बड़ी परिस्थिति में आप ना भूले कि परमेश्वर के दाहिने हाथ ने आपको पकड़े रखा है, ऊंचा उठाया है। He has not chosen you to lead a life of failure, church. और उसने आपको निराशा का जीवन He बनने has के लिए not चुना chosen है। you to lead a life of sickness. और उसने बीमारी का जीवन नहीं But किया He has है, chosen you to be a light to these people who are walking in darkness. परंतु उसने आपका चुनाव किया है ताकि अंधकार के लोगों के लिए आप प्रकाश बने। Your testimony should stand out in the marketplace. और इस गलियों में आपकी गवाही जो है शहर खड़े रहने Your चाहिए। testimony should stand out आपकी in the गवाही, place where you are working. और जहाँ कहीं आप काम करते हैं वहाँ आपकी गवाही बोलनी चाहिए। Your testimony should stand out in the place where you are studying. और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपकी गवाही होनी चाहिए। Remember, church, His right hand is holding you up. और याद रखें कि उसके दाहिने हाथ ने आपको उठाए रखा है वो अपने कंधों से भी नीचे नहीं ला रहा है. He's saying, I'll hold you up. और वो कहता है कि मैंने तुम्हें उठाए रखा है। You know, God is honoring you, church. परमेश्वर आपका सम्मान कर रहा He's है, holding you up. वो आपको ऊंचा उठाए हुए In any हैं। situations of your life, He's holding you up. आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में वो आपको उठाए हुए Psalms हैं। 73 verse 23. और भजन संहिता 73 उसका 23वां वचन। Nevertheless, I am continually with you. This is the promise of God. You hold me by my right hand. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मन तुझ में समता है, मेरे दाहिने हाथ ने तुझे पकड़ा हुआ He है says, I am continually with you. और मैं सदा तेरे साथ हूँ। He is not leaving you for a second. और वो एक भी सेकंड के लिए आपको नहीं You छोड़ता। know, your father, your mother, they will leave you for some time. आपके माता पिता कुछ क्षणों के लिए आपको छोड़ देंगे। They will go, mother will go in the kitchen to cook. माता किचन में जाएंगे खाना The child बनाने is के लिए, left all alone. और वहां पर बच्चा अकेला है। है ना? But God says in 73 and verse 23, और भजन संहिता 73:23 में परमेश्वर का वचन He says, कहता I है am continually with you. कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। It's comfort to know that God is there और ये सांत्वना की बात है, जानना कि परमेश्वर है, with His hand upon our life. उसका हाथ जो हमारे जीवन पर बना He's हुआ है, watching over you and me, वो आपको और मुझे देख रहा है, taking care of everything. हर एक चीज की जो है देखभाल कर रहा You है। know, do not think how this day will go. और आप ना सोचे कि ये दिन कैसे गुजरेगा। If God has shown you that day, यदि परमेश्वर ने आपको ये दिन दिखाया if है, this is the day the Lord has shown you, और यदि ये दिन है जो परमेश्वर ने आपको दिखाया say है, to the Lord every time, और परमेश्वर से आप हमेशा this is कहें, the day the Lord has made, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया and है, it will be what? और वो कैसा होगा, I will rejoice और मैं उसमें आनंद को and be मनाऊंगा, glad in Him. और मैं उसमें हर्षित रहूंगा, I will rejoice. मैं आनंद को मनाऊंगा। But church, as Christians, और कलीसिया महसी होने के as नाते, believers, विश्वासी होने के नाते, you know, people will do that way. How this day will go, I don't know. और लोग अपने सर पे हाथ मार के बोलते हैं ये दिन कैसे जाएगा पता नहीं। God doesn't want you to put your hand on your kapal. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने सिर पर अपने हाथ को मारे। God wants that hand to be raised up to Him and say, thank you, Lord, for this wonderful day. आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। He's watching over you, church. वो आपको देख रहा है He's कलीसिया, not closed His eyes. उसने अपनी आंखों को बंद नहीं किया। Bible says, बाइबल कहती है, you know, Bible says about it. और बाइबल इस बारे में कहती है, He watches over His children. वो अपने बच्चों को देखता रहता The है। keeper of Israel will neither slumber nor sleep. इजराइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँगता है, He watches over you. वो आपको देखता है। Wherever you go, you are not going alone. जहाँ कहीं आप जाते हैं आप अकेले नहीं रहते, He's standing with you. वो आपके साथ खड़ा He's है, talking to वो you. आपसे बात कर रहा है, He's walking with वो you. आपके साथ चल रहा है, He's helping you. वो आपकी सहायता कर रहा We है। have to recognize that thing in our life, church. और ये जीवन में हमें पहचानना है। You want to lead an extraordinary life? और यदि आपको असाधारण जीवन जीना Start है, recognizing God's hand over your life. परमेश्वर का हाथ अपने जीवन पर आप पहचाने। Do not look to the back and say, this thing happened, that thing happened.
trumpet, stop creeping. और पीछे मुड़कर आप ना देखें कि ये हुआ वो हुआ, कुड़कुड़ाना आप बंद करें, But look to God. परंतु परमेश्वर को आप देखें। He is the God who says, I will never leave you nor forsake और वो you. परमेश्वर है जो कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। God's power is mighty, church. और परमेश्वर का सामर्थ महान है, He can heal the broken-hearted. वो टूटे हुए हृदय को He बनाता can give है sight to the blind. और वो अंधों को आंखें देता He है, can make the lame walk. वो लंगड़ों को चलाता है He can restore our soul. और वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को नया करता God है। has given you that authority. परमेश्वर ने वो अधिकार आपको That दिया as you है, pray on the sick will be healed. जब आप बीमारों पर प्रार्थना करते हैं वो तो चंगाई मिलेगी। If there is a deaf person, you pray for him in faith and ask God, God, heal him right now. God will answer that और prayer. यदि कोई मृतक मनुष्य है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनके जीवित करेगा, उनसे Because चंगाई Bible देगा। says, whatever you shall lose on this earth will be loosed in heaven. क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। So should we not pray? तो क्या हमें प्रार्थना नहीं करनी Lord, चाहिए? put your hand upon me. परमेश्वर अपना हाथ मुझ पर रखे। Can we not pray that prayer? क्या आप वो प्रार्थना नहीं कर सकते? We can pray that prayer. हम ये प्रार्थना कर सकते Lord, हैं, put your hand upon me. परमेश्वर अपना हाथ मुझ पर बनाए रखे, Give me your wisdom. मुझे आपकी बुद्धि दे, Guide me, Lord. मेरी सहायता, मेरा मार्गदर्शन करे Lord, protect me with your power. और आपके सामर्थ्य से मेरी रक्षा करे। Psalms 37 verse 23 to 25. भजन संहिता 37, 23 से 25। The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. धर्मी जन के मार्ग यहोवा सैनिक की सावधानी से चलने में सहायता करता है और वह उसका पतन से बचाता है। Though he fall, he shall not be utterly cast down. Wait, I'll just complete. Okay? Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. I have been young, and now I am old. Yet I have not seen, this is a very important line, church. Read that. Let it go deep down in your spirit. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. सैनिक यदि दौड़कर शत्रु पर प्रहार करे तो उसके हाथ को यहोवा सहारा देता है और उसको गिरने से बचाता है। मैं युवक हुआ करता था परंतु अब मैं बूढ़ा हूँ। मैंने कभी यहोवा के सज्जन को असहाय छोड़ता नहीं देखा, मैंने कभी सज्जनों की संतान को भीख मांगते नहीं देखा। But our God says, He is a God of righteousness. हमारा परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी जन का परमेश्वर है। He will never allow you to spread hand for your food in front of others. और वो कभी आपको अनुमति नहीं देगा कि आप दूसरों के सामने खाने के लिए भीख मांगे। When Elijah was taken care of, जब एलीशा का ध्यान लिया गया, why not you and me, church? तो आपका और मेरा ध्यान क्यों नहीं लिया God sent जाएगा? ravens और परमेश्वर ने कौवों को भेजा with food for Elijah. एलीशा के लिए खाना लेकर। You and me are greater than that raven. और आप और मैं उस कौवों से बढ़कर हैं। You know, God will provide. परमेश्वर प्रबंध You करेगा। have to fix your eyes on Him. आपको अपनी आंखें उस पर लगाए You have रखनी to है remember that the Lord's right hand is upon us. और आपको याद रखना है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ आप पर है God always wants to walk with us, church. और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चलना चाहता है। So should we not pray for His mighty presence तो क्या in our life? तो क्या हम अपने जीवन में उसकी महान उपस्थिति के लिए You प्रार्थना know how we करें? pray? तो हम कैसे प्रार्थना Lord करेंगे? bless me and my family. परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को Lord आशीष give my दे daughter this job. और मेरी बेटी को ये काम दे। I don't say it is wrong prayer, और ये गलत प्रार्थना नहीं है, but sometimes you have to pray for the needs of others. परंतु कई बार आपको दूसरों की जरूरतों के लिए You know, प्रार्थना when you करनी pray for है। others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना because करते हैं, Bible says He who refreshes others, God will refresh him. और बाइबल बताती है जो दूसरों को ताजा करते हैं परमेश्वर उन्हें ताजा तवाना करते You know, हैं। but what has happened? Satan has blinded our eyes. और क्या हुआ है? दुष्ट ने हमारी आंखों को बांध दिया है We have been made deaf. और हमें बहरा कर
दिया है। We do not pray for the need of our people in the church. हम अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, But we only say, God bless my family, bless my son, bless my daughter, bless this, bless that, bless this, bless that. God is fed up of blessing you. और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को आप आशीषित करें, और परमेश्वर आपके ऐसी प्रार्थनाओं से थक गया है। Time has come that you start praying for the people in the church. और समय आया है कि कलीसिया के लोगों के लिए आप प्रार्थना You करें। want this ecclesia to grow, start praying for the needs of the people present here right और now. यदि आप देखना चाहते हैं कि ये कलीसिया बढ़े, तो यहाँ के लोगों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। Tell the Lord, Lord, I need your presence each day. और परमेश्वर से कहें, मुझे रोज आपकी हुजूरी की जरूरत है। When His presence comes, और फिर आपकी उसकी हुजूरी the जब आए, darkness will flee. अंधकार चला जाएगा, Your thoughts will be changed. और आपके जो विचार है बदल जाएंगे, You will be able to see what the Lord wants you to see, church. और आप देख सकेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. The fifth point. और पांचवा रहस्य, Jabez prayed for God's protection. याबेश ने परमेश्वर की सुरक्षता को मांगा। He says in the fifth line, Jabez prayed that you would keep me from harm, that it may not pain me. और याबेश ने ऐसी प्रार्थना की कि मुझे हर दुष्ट से बचाए रखे, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। King James Version says, KJV says, that you would keep me from all evil, that it may not grieve me. और ऐसा कहा है कि तुम मुझे हर एक दुष्ट से बचाए रखेगा, ताकि मुझे कोई शोक ना हो। In verse 10 he says, Lord, you keep me away from the evil, और 10वीं आयत में कहा है कि परमेश्वर मुझे हर दुष्ट से आप that बचाए I may रखें, not cause pain. कि मुझे कोई दुख ना हो, You know, I may not cause pain to whom? कि मैं किसी के लिए कोई दुख का कारण ना बनूं, Because of me, no one should get hurt. और मेरे वजह से किसी को दुख ना No one पहुंचे, should get pain because of me. मेरे कारण किसी को दुख या तकलीफ ना हो। God has made you a blessing. परमेश्वर ने आपको आशीष बनाया है, God has not made you a stumbling block for people. और परमेश्वर ने लोगों के लिए आपको अड़चन नहीं बनाया है। God has made you something. परमेश्वर ने आपको कुछ तो बनाया है, God has not made you anybody. और परमेश्वर ने आपको ऐसे ही कुछ नहीं बनाया। But God has made you something परमेश्वर ने कुछ तो आपको विशेष बनाया है, कोई तो in His kingdom. उसके राज्य का। You know, we should always pray, Lord, you will keep me away from evil, that I would not be a pain. और आप हमेशा ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे हर दुष्ट से बचाए रखे, ताकि मैं किसी को तकलीफ ना दूं। In the Lord's Prayer it is written, और परमेश्वर की प्रार्थना में ये लिखा हुआ है, the Lord's Prayer says, और परमेश्वर की प्रार्थना कहती and है lead us into temptation. कि हमें आप प्रबोधन में चले, No, it says, lead us not into temptation. और उसमें कहा है कि आप हमें प्रबोधन से बचाए रखें, Lead us not, Lord. और हमें आप उसमें ना लेकर No चले, more temptations in my life. और मेरे जीवन में कोई प्रबोधन ना हो। Temptations will come, और प्रबोधन आएंगे, but God will deliver you from that evil one also. परंतु परमेश्वर उस दुष्ट से आपको बचाए रखेगा। You know, if you go to verse 9, और 9वीं आयत यदि आप his देखें, mother named him Jabez, उसकी माता ने उसका नाम याबेस saying, रखा, because I bore him with pain. ये कहते हुए कि मैंने बहुत ही दुख से उसे जन्म दिया You know, when है। I was reading, I was getting angry. और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत I said, गुस्सा आया। how, कैसा रहेगा ये माँ? How this mother will be? और मैं सोच रहा था कि ये माता कैसी है, I'm calling her own son pain. अपने पुत्र को वो एक दर्द बुलाती है, है ना? But it is written that she bore him with pain. That's why Jabez. और ऐसा लिखा है कि उसने उसे दुख से दर्द से जन्म दिया, इसलिए उसने उसका नाम याबेस रखा। Jabez knew याबेस जानता था that pain could affect a life. और जो दुख है किसी जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, If you give pain to somebody, that can affect a life, church. और यदि आप किसी को दुख दे तो उसके जीवन पर प्रभाव होता है। Be very, very careful और आप बहुत सावधान रहे, of what you speak, how you act, how is your actions. Be very careful. आप सावधान रहे कि कैसे आप बोलते हैं, आप कैसे किस रीति से बर्ताव आप करते हैं। Some pain may go directly deep down into the heart.
और कुछ दर्द जो है वो हृदय की गहराई में जाते हैं। And then after the word comes out of our mouth, you cannot pull that words back. और फिर जब शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं आप उसे दोबारा अपने मुंह में नहीं ले सकते। You have to speak words which will edify the Lord and edify that person also, will lift up that person. और आपको ऐसे शब्दों को कहना है जो सामने वाले मनुष्य को ऊंचा उठाए, परमेश्वर को ऊंचा Do उठाए। not speak words which will hurt a person. ऐसे शब्दों को आप ना कहे जो किसी को दुख पहुंचाए। Before speaking, think twice. और बोलने से पहले 2 बार आप सोचे, Because once the arrow moves out from that bow, क्योंकि जब वो तीर उस बाण से निकलता है it will hit that thing and it will never come back. और वो तीर छूट जाता है, वो दोबारा कभी नहीं लौट It कर आता will bring a big problem. और वो बड़ी समस्या को लेकर आएगा And that hurt cannot be repaired. और वो चोट जो है उसकी मरम्मत नहीं की जा So सकती। always remember, church, हमेशा आप याद रखें कलीसिया, do not cause pain to anyone. किसी को आप दुख ना दे। He also knew और वो ये भी जानता that था only God can set him free. केवल परमेश्वर उसे छुड़ा सकता है। Revelations 21 and verse 4. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4था आयत। Revelations 21 and verse 4. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4था And वचन। God will wipe away every tear from their eyes. और परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा There shall be no more death, और उनमें कोई मृत्यु ना होगी, nor sorrow, कोई शोक ना होगा, nor crying. कोई रोना धोना नहीं, There shall be no more pain. और कोई पीड़ा नहीं होगी, For the former things have passed away. क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। God is big enough to take away our sorrow. और परमेश्वर काबिल है हमारे दुखों को He is निकालने के big लिए, enough to take away our guilt. और वो बहुत बड़ा है कि हमारे He शर्म को is निकाल big enough सके, to take our shame. और वो हमारे शर्म को निकाल सकता है। God is going to honor you where you have been put to shame. और जहां आप शर्मिंदा हुए वहीं परमेश्वर आपको सम्मानित Your करेगा। own brothers must have written you off. और आपके अपने भाइयों ने आपको नकारा होगा, Your own family must have written you off. और आपके अपने परिवार ने आपको नकार दिया होगा, They must have said he is good for nothing. और उन्हें कहा होगा कि तुम किसी चीज के लिए अच्छे He नहीं, cannot come up in life. और तुम अपने जीवन में कभी He सफल ना cannot do होगे, anything. तुम कुछ नहीं कर सकते। But remember, church, परंतु याद रखिए कलीसिया, there is a God who has created you. और एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपकी रचना की है। Don't open your mouth and cause pain to them who are speaking about you. और अपने मुखों को खोलकर आप उन्हें दुख ना दे, Silently take that things to the Lord in prayer. और चुप से रहकर वो सभी शब्दों को परमेश्वर के पास आप लेकर जाए। He is big enough to take away our pain also. और परमेश्वर काबिल है कि वो हमारे दुखों को निकाल सके। So can we not ask him to protect us? तो क्या हम नहीं मांग सकते कि वो हमारी सुरक्षिता को करे? Jabez is only found in 2 verses. और याबेस केवल 2 आयतों में पाया गया, And this verse is very powerful. और ये आयत जो है बहुत Do सामर्थ्यशाली not है, neglect that verse. और इसे आप अनदेखा ना करें। Read every day. हर रोज इसे आप पढ़े, Read every day. हर रोज इसे आप पढ़े, Make that prayer a lifestyle for you. और ये आपके जीवन की शैली हो। Ask the Lord, God, give me something as I bring this prayer. और परमेश्वर से कहे कि जैसे मैं ये प्रार्थना को करता हूँ तो आप मुझे कुछ He दें। was not a great prophet. और वो महान भविष्यवक्ता नहीं था, He was not a great person. और वो महान ऐसा मनुष्य नहीं था, He had not won any wars. और उसने कोई युद्ध नहीं जीता था, But Jabez still found favor in the sight of his God. परंतु फिर भी याबेस ने परमेश्वर की नजर में कृपा को पाया। He is remembered उसे याद किया गया because he prayed. क्योंकि उसने प्रार्थना की, He is remembered उसे याद किया जाता because he है remembered in faith. क्योंकि He prayed in faith. क्योंकि उसने विश्वास में प्रार्थना की, And with only one belief और फिर सिर्फ एक विश्वास के that साथ God was big enough to answer his prayer. कि परमेश्वर काबिल है उसके प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। Church, this morning, कलीसिया आज की सुबह, whatever situations you are going through, और आप जिस किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, however the situations of your life may be till this moment, और आज के क्षण में चाहे जो भी परिस्थिति आपकी है, whatever people have spoken over your life, और जो कुछ लोगों ने आपके बारे में कहा है, take everything to the Lord in prayer. और हर एक चीज प्रार्थना में आप परमेश्वर के As पास लेके Jabez जाएं। prayed, you pray. जैसे याबेस ने प्रार्थना की, आप प्रार्थना Oh God, करें that you will bless me indeed. और कहे कि परमेश्वर आप मुझे सच में आशीष That you will करेंगे, enlarge my कि territory. आप मेरी सीमाओं को बढ़ाएंगे, That your hand will be with me. कि आपका हाथ मुझ पर बना That रहे, you will not lead me into evil, even into temptation. कि आप मुझे दुष्ट में और लोभ में नहीं छोड़ेंगे, That I may not cause pain to कि others. ताकि मैं दूसरों के लिए दुख का कारण ना बनूं। So this morning before I end, let this be your prayer and my prayer. और कलीसिया आज की सुबह
समाप्त करने से पहले ये आपकी और मेरी प्रार्थना हो। My God is a God of victory, church. मेरा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है God made Jabez more honorable than his own brothers. और परमेश्वर ने याबेश को उसके भाइयों से भी अधिक सम्मानित About किया his brothers, nothing is written. और उसके भाइयों के बारे में कुछ नहीं लिखा, But it is written about Jabez. परंतु याबेश के बारे में लिखा गया। He prayed in faith. उसने विश्वास से प्रार्थना की। You know, God, the last line says, and the Lord granted him his request. और आखिरी लाइन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी विनती को पूरा किया Granted him his request. और परमेश्वर ने उसकी विनती को पूरा किया। So let us walk in faith, church. तो हम विश्वास में चले Let us pray in such a way और इस रीति से हम प्रार्थना करें that God will grant us all that we ask for. और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगे परमेश्वर उसे पूरा करे। God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात God will करेगा, answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Just keep in faith. Keep on praying in faith. विश्वास से आप प्रार्थना करते रहे And start praying. और प्रार्थना करते रहे Let prayer कि ये प्रार्थना करे be the fountain of your life. कि आपके जीवन के फाउंटेन से Let it be a fountain of our life. ये आपकी जीवन का स्तोत्र हो। That as I stand, as I pray, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, you know, God may answer my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। Come church, let's stand this morning. कलीसिया आज सुबह हम खड़े हो जाएंगे, Just close your eyes for a moment. कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे।